So well student, let us start. I discussed with you in last class what is the role of legislature. Legislature का क्या role होता है, and I am asking this question to Aviraj Singh. So Aviraj Singh, hope you attended last class. So please tell me the role of legislature and what does legislature stands for. यानी legislature अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है legislature का. I am talking about president, I'm talking about prime minister, I'm talking about parliament, or I'm talking about legislative assembly. Yes, so other student can also give the answer in chat section. Or Ujjwal can give the answer. Yes, Ujjwal. The role of legislature. Okay, so Bhumi Khanna replied parliament. Okay, correct. And make laws, pass bill which later become acts, include Rajya Sabha, Lok Sabha and President. Absolutely correct है आंसर भूमि गुप्ता आपका. And Yash Arora ने भी बोला कि sir could you please repeat the question. Okay, Yash, my question is what is the role of the legislature and what does legislature stands for. Legislature का मतलब क्या है, that is my question. तो भूमि गुप्ता ने जो चैट सेक्शन में आंसर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है. लेजिस्लेचर का रोल होता है लॉ को बनाना, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, और लेजिस्लेचर में हम लोग काउंट करते हैं लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. और हाँ बिल्कुल स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 हाउसेज स्टेट में भी होते हैं, उनको भी हम लेजिस्लेचर बोलते हैं. करेक्ट है, वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is the latest state of India which was created by the Parliament of India. हमने सबसे लेटेस्ट स्टेट इंडिया में कौन सा बनाया, एंड दैट क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू अबिल एंड निष्ठा, अगर इसका आंसर दें. ओके, सो भूमि खन्ना, ब्रह्मजोत कौर ने आंसर देना शुरू कर दिया है, एंड दीज स्टूडेंट्स sharing the answer Telangana. Okay, so Brahmjot, Vaibhavi, Kumud and Sakshi Agarwal all are giving the answer Telangana. So I think जिन स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पूछा है निष्ठा ने आंसर दिया. ओके, एंड अबिल भी एग्री होगा इन सभी आंसर से. बिल्कुल तेलंगाना इज द राइट आंसर. एंड 2014 में तेलंगाना को हमने क्रिएट किया, लेकिन फिर उसके बाद 29 स्टेट्स हो गए थे, बट जम्मू कश्मीर हटने के बाद 28 स्टेट्स है. करेक्ट. सो नाउ टेल मी that Daman and Diu Union Territory was merged in which Union Territory? My next question number 3, and I am asking this question from Isha Gogar. Yes, Isha, हमारा क्वेश्चन ये है आपसे कि दमन एंड दीव को किस यूनियन टेरिटरी में मर्ज कर दिया गया था, एंड फिर उसके बाद ये 2 यूनियन टेरिटरी बिकेम 1. सो मनस्वी सूद ने आंसर दिया, साक्षी शर्मा ने आंसर दिया है, कुमुद ने जो आंसर दिया वो शायद मुझे लगता है रॉन्ग है, अंडमान निकोबार बिल्कुल गलत है, लेकिन यस दादर नगर हवेली में दमन एंड दीव को मर्ज किया और वो एक यूनियन टेरिटरी बन गए. करेक्ट है क्षितिज, करेक्ट है आंसर. दर्पित का भी आंसर रॉन्ग है, एंड सौरभ ने आंसर बिल्कुल सही दिया. करेक्ट है, वेरी गुड. अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे यहाँ पर जो सिटीजनशिप है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमने मेंशन की है. Citizenship of India mentioned in the Constitution in which article of Indian Constitution? And I'm asking this question from Devjot Singh. So Devjot Singh, if am I audible to you? So please give the answer. And Bhumi Gupta is very fast, and yes, I think answer is absolutely correct hai. Part 2, Article 5 to 11. So let me clap for these students. Those are participating in the class very sincerely and listening the questions and giving the answer very fast. So very good students. Very good Bhumi. Very good Divjot. Very good Sakshi. Very good Kshitij. Very good Lakshya Gandhi. Correct है. Article 5 to Article 11 and part number 2 में हमने citizenship को mention किया है. Correct है. Very good. Okay. My question number 4 is fundamental right we adopted from United States of America. हाँ कोई बात नहीं कुमुद, पर्पस यही है क्लास का. देखो क्लास में मैं इतना ज्यादा आप लोगों से पूछूंगा, इतना इरिटेट कर दूंगा पूछ के कि आपको बाद में रिवीजन की कोई जरूरत ना पड़े. हम क्लास में इतना रट्टा लगा देंगे ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर क्लिक कर जाए. तो इसलिए कोई होपलेस या डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है कि कुछ स्टूडेंट दे रहे और मैं भूल गई या मैं भूल गया.
सिर्फ पर्पस यही है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया जाए ताकि आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो। और मैं बिल्कुल आप लोगों को सबको शाबाशी दूंगा कि आप लोग सारा दिन क्लासेस लेते हो और उसके बाद नाइट में अभी 9:45 अराउंड हो रहा है और आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, तो उसके लिए आप सबको सैल्यूट है। लेकिन हाँ, ये डेडिकेशन तो दिखाना भी बनता है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स अभी हो जाएंगे मई और जून में। तो ठीक है, बढ़िया है। तो ठीक है कुमुद, क्वेश्चन मेरा ये था आप लोगों से कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट अडॉप्ट किए। आप मेरे को सिर्फ इतना बताओ, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ रिया शर्मा से और हर्षिदक सिंह से। आर्टिकल नंबर 12 में मैंने आपके साथ क्या डिस्कस किया था? आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है? फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट are explained, are mentioned. So what about article 12? Okay, so Manasvi Sood ने आंसर दिया है state, the definition of the state. Okay, and what about other students? Other students agree with the answer of the Manasvi Sood? Hitarth Gulati, Isha, Vaibhavi, Brahmjot, Ujjwal, Kanishk Mahajan. State government will provide the fundamental rights to the citizen. Okay, correct है, rights provided by the state. Very good, correct है, very good. Okay, now please tell me, I discuss with you fundamental right में 6 fundamental right है। Okay, fine रिया, no issue, correct। लेकिन आप रिकॉर्डिंग को आप जरूर उसको सुन लेना, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर लेते हैं और कई बार लगता है कि चलो रिकॉर्डेड लेक्चर में बाद में सुन लूंगा या बाद में देख लूंगा, और फिर क्या होता है वो पेंडिंग हो जाते हैं, और जब वो इतने ज्यादा पेंडिंग हो जाते हैं तो फिर आपका मन नहीं करता उसको कवर अप करने का। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट यही है कि चलो आप देखो अपने घर में बैठे हो, रात को हम क्लास ले रहे हैं और कितना कंफर्टेबल हो आप अपने घर में, यू आर टेकिंग द क्लास। बट यस, डू नॉट मिस यूज दिस टेक्नोलॉजी एंड ट्राई टू अटेंड द क्लास सिंसियरली। ऐसा मत सोचना कि चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग की भी तो एक व्यवस्था करी रखी है टेक्नोलॉजी ने, करेक्ट। चलो ठीक है, डन। अब मेरा क्वेश्चन ये है, यस, थैंक यू रिया। माय क्वेश्चन इज दैट इन विच आर्टिकल चाइल्ड लेबर को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, एंड व्हाट अबाउट द एज ऑफ चाइल्ड लेबर? यस, लव्या से मैं ये आंसर पूछने वाला था बट ऑलरेडी लव्या ने आंसर दे दिया। आर्टिकल 24, मनस्वी सूद, कृष्ण नारंग ने भी आंसर दिया, क्षितिज ने आंसर दिया, वेरी गुड, करेक्ट है 24 एंड बिलो 14 ईयर ऑफ एज। वेरी गुड भूमि खन्ना, करेक्ट है, आपने दोनों पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन के आंसर दिए। भूमि गुप्ता, वेरी गुड मनस्वी, क्षितिज, दर्पित। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है परिधि कालरा से। सो परिधि, कुड यू प्लीज टेल मी, आई डिस्कस विद यू राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये राइट टू इक्वालिटी में आता है या राइट टू फ्रीडम में? मतलब हम इसे किस सेक्शन में रखेंगे? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो माय क्वेश्चन, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम परिधि कालरा। सो लव्या ने आंसर दिया आर्टिकल 19 एंड राइट टू फ्रीडम के सेक्शन में ये आता है अकॉर्डिंग टू लव्या। ओके, एंड परिधि ने भी आंसर दिया आर्टिकल 19, वेरी गुड। मनस्वी, परिधि, वैभवी, क्षितिज, एवरीवन गिविंग आंसर यस, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है और बिल्कुल आर्टिकल 19 में इसको मेंशन किया है हमने, करेक्ट है, वेरी गुड। ओके, सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम किस आर्टिकल को बोलते हैं? और ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं अविराज सिंह एंड ग्रेसी से। सो माय क्वेश्चन इज from Aviraj Singh and Gracie, soul and heart of the constitution. So Lavya is also very fast with Bhumi Gupta, Yash Arora, Kshitij and other students giving answer. Article 32. Okay. So I think Gracie and Aviraj ने अभी तक आंसर नहीं दिया, but hope both are agreed with the answer of these students. And right to constitutional remedies है according to Bhumi Khanna. Very good Gracie, very good Paridhi, Sakshi, correct है। Article 32, soul and heart of the constitution. Who said this article, heart and soul of the constitution? ये statement किसने दिया? किस ग्रेट लीडर ने ये स्टेटमेंट डिलीवर किया? सो भूमि खन्ना से मेरा क्वेश्चन था, लेकिन ऑलरेडी भूमि खन्ना ने आंसर दे दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड लक्ष्य,
मनस्वी, परिधि, लव्या एंड भूमि. ओके, नाउ आई एम आस्किंग सुहानी बत्रा से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं एंड सौरव से. द क्वेश्चन इज, प्लीज टेल मी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. From which country we adopted DPSP, Directive Principle of State Policy? From which country we borrowed this feature? So लव्या ने आंसर दिया है आयरलैंड. ओके, क्षितिज एंड सौरभ ने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, एंड साक्षी शर्मा ने आंसर दिया है आयरलैंड. सो एक्सेप्ट सौरभ, अदर स्टूडेंट्स एंड सुहानी बत्रा ने भी यूएसए बोला. ओके, तो इसका मतलब मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा. मुझे लग रहा था कि शायद आप दोनों रॉन्ग आंसर दोगे. बिल्कुल ये रॉन्ग आंसर है. आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए. करेक्ट, तो आंसर है आयरलैंड. वेरी गुड. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज रिवीजन सेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट? कोई एक डिफरेंस, मैंने आपके साथ 3 डिफरेंस डिस्कस किए थे फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में. कोई भी एक डिफरेंस जो भी आपको रिमेंबर हो, आप यहाँ पे चैट सेक्शन पे शेयर करें. वैसे मैं ये क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं साक्षी अग्रवाल से. यस साक्षी, द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी. ओके, भूमि गुप्ता ने आंसर दिया सर, राइट टू इंडिविजुअल है फंडामेंटल राइट, वेल बीइंग and entire society DPSP. Okay, so understood your answer. मतलब भूमि गुप्ता का ये कहना है कि फंडामेंटल राइट टू इंडिविजुअल प्रोवाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड डीपीएसपी जो है वो एंटायर सोसाइटी के वेलफेयर के लिए दिए गए. ठीक है भूमि गुप्ता, यस अंडरस्टूड. आई कैन अंडरस्टैंड दैट while typing so कुछ एरर्स हो जाती हैं, बट आई अंडरस्टूड योर आंसर. ओके, एंड यस एनी अदर स्टूडेंट? साक्षी, ग्रेसी, भूमि खन्ना, मिस्टर गुलाटी, दर्पित, लव्या, आरुषि, ऋत्विक, कृष्ण नारंग. ओके, सो वैभवी बोल रही है आयरलैंड. ओके, साक्षी अग्रवाल, सॉरी सर आई डू नॉट रिमेंबर. ओके, नो इशू. तो मैं एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता देता हूं. वैसे भूमि गुप्ता ने भी आंसर अच्छा दिया है, करेक्ट आंसर है. बस एक बेसिक डिफरेंस यही है कि कोर्ट में ऑब्जेक्शनेबल डीपीएसपी नहीं है. यानी अगर डीपीएसपी को चीफ मिनिस्टर फॉलो नहीं करता उन इंस्ट्रक्शंस को, सो यू कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट सीएम, बट फंडामेंटल राइट कोर्ट में ऑब्जेक्शनेबल है. जबकि लव्या ने आंसर दिया है कि दोनों जो है डीपीएसपी आर नॉन जस्टिफिएबल, नॉट एनफोर्स बाय जुडिशरी. यस करेक्ट है लव्या आपका आंसर. फंडामेंटल राइट फॉर सिटीजन ऑफ नेशन एंड डीपीएसपी फॉर स्टेट टू मेक पॉलिसीज. यस करेक्ट है साक्षी शर्मा. चलो बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन, and thank you for participating in this revision session. अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड होप मैक्सिमम स्टूडेंट अब ज्वाइन कर चुके होंगे क्लास में. एंड मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्लास में जरूर ज्वाइन किया करो. अगर कोई टेक्निकल इशू या कोई जेन्युइन इशू नहीं है आपके साथ, क्योंकि जब आप क्लास ज्वाइन करते हो ना तो उसी समय ना वो टॉपिक फिनिश हो जाता है, अदरवाइज फिर वो पेंडिंग हो जाएगा, और वो पेंडिंग वर्क को खत्म करना फिर अपने आप में एक टास्क है. करेक्ट, चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. एंड लेट मी चेंज द स्लाइड. ओके,